السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید اس وقت آپ تھک چکی ہیں، زندگی کی الجھنوں سے، رشتوں کے بوجھ سے، یا ان وعدوں سے جو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ آپ نے سب کو ہنس کر تسلی دی مگر خود کو نہیں۔ آپ نے اپنے درد کو مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا لیا، لیکن دل جانتا ہے کہ اندر کہیں ایک خاموش تھکن ہے، ایک بے نام سی اداسی۔ یہ پیغام آپ کے لیے ہے، ہاں صرف آپ کے لیے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ آپ کے ہاتھوں یہ الفاظ آ گئے، بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ جان لیں آپ اکیلی نہیں ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور آپ کے ہر آنسو کو گواہ بنا رہا ہے کہ اس کا رحم آپ کے قریب ہے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی خاموش ہو جاتی ہے کہ دل کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ آپ چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے کہ اندر سے کیسا طوفان چل رہا ہے۔ سب کو لگتا ہے آپ ٹھیک ہیں، مضبوط ہیں، سب سنبھال لیتی ہیں، مگر کسی کو کیا خبر کہ وہ مضبوطی بھی اب بوجھ لگنے لگی ہے۔ آپ کے مسکراہٹوں کے پیچھے وہ خاموش آنسو ہیں جنہیں آپ نے برسوں دل کے کسی کونے میں چھپا رکھا ہے۔ شاید آپ تھک چکی ہیں لوگوں کی توقعات سے، خود کو بار بار سنبھالنے سے، ہر روز ایک نیا چہرہ لگانے سے۔ لیکن جان لیجئے یہ تھکن کوئی کمزوری نہیں، یہ اس روح کی پکار ہے جو اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ نے کتنی بار رات کے اندھیرے میں خاموشی سے روتے ہوئے کہا، یا اللہ بس اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اور یقین مانیے اس لمحے آپ اکیلی نہیں تھی، وہ آپ کے ساتھ تھا، بالکل قریب، آپ کی سانسوں کے بیچ، آپ کے دل کی دھڑکن میں۔ اللہ اپنے بندے کو اس لیے توڑتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ روشنی نکلے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں آ سکتی۔ آپ کی تھکن دراصل ایک پیغام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں سے نہیں، اپنے رب سے بات کریں۔ وہ چاہتا ہے آپ تھوڑا رک جائیں، اس کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو دراصل وہی ایک دروازہ باقی رہ جاتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دل کے سب سے اداس لمحوں میں بھی کہیں اندر ایک ہلکی سی امید رہتی ہے؟ ابھی سب ختم نہیں ہو۔ وہ امید آپ کے ایمان کی نشانی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی وہ چنگاری ہے جو آپ کے اندر جلتی رہتی ہے تاکہ اندھیرا مکمل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ یقین رکھتی ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ واقعی آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ سوچتی ہیں کہ شاید سب ختم ہو گیا تو یاد رکھیے اللہ کے فیصلوں میں کبھی اختتام نہیں ہوتا، وہاں ہمیشہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے بہت برداشت کیا، بہت دیا، بہت چھوڑا، اور شاید اب لگتا ہے کہ بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ وہ ہر آنسو گن رہا ہے، ہر سجدہ دیکھ رہا ہے، ہر دعا سن رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کا جواب فوراً نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ ابھی تیار نہیں۔ وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، صبر سکھا رہا ہوتا ہے تاکہ جب وہ عطا کرے تو آپ اس نعمت کو سمجھ سکیں۔ زندگی کے مشکل لمحے دراصل وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ اپنے بندے کو تراشتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں جل کر چمکتا ہے، ویسے ہی آپ کا ایمان دکھ میں نکھرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر وہ سکون پیدا ہو جو صرف یقین سے آتا ہے، وہ یقین کہ جو ہو رہا ہے وہ میرے رب کے علم میں ہے اور وہ غلط نہیں کر سکتا۔ آپ کے ارد گرد لوگ بدل گئے ہوں گے، حالات بدل گئے ہوں گے، مگر اللہ نہیں بدلا۔ وہ ہمیشہ وہی ہے، رحیم، قریب، مہربان۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کا دل کب ٹوٹا، کب آپ نے خود کو سنبھالا، کب آپ نے آنسو روک کر کہا الحمدللہ۔ وہ سب یاد رکھتا ہے۔ اگر آج آپ تھک گئی ہیں تو رک جائیے، خود پر الزام نہ لگائیے کہ آپ کمزور ہیں۔ کمزور وہ نہیں ہوتا جو روتا ہے، کمزور وہ ہوتا ہے جو دعا چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ ابھی بھی دعا کرتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے آ جائیں، بغیر الفاظ کے، بغیر دکھاوے کے، بس دل کی حالت کے ساتھ۔ جب ایک عورت اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر جھکتی ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ تھکن، یہ خاموشی، یہ درد سب اس کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں کہ سکون دنیا کے شور میں نہیں بلکہ اس کے ذکر میں ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہہ کر سانس لیتی ہیں تو وہ سکون جو دل میں اترتا ہے وہ کسی دوا، کسی شخص، کسی لمحے سے نہیں، صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد اپنے دکھ کو بد دعا نہ بنائیے، اسے دعا بنائیے۔
आजमाइश, सब्र और यकीन। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हर तरफ अंधेरा सा महसूस होता है, रिश्ते खामोश हो जाते हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं और दिल जैसे यकीन खोने लगता है। आपने शायद कई बार सोचा होगा, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कब बदलेंगे ये दिन। लेकिन ऐसे लम्हों में इंसान दरअसल अपने रब के और करीब आ रहा होता है। वो लम्हा सब्र और यकीन की पहचान बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। देखिए, यहाँ आजमाएंगे कहा गया है, यानी ये वादा है, धमकी नहीं। अल्लाह सिर्फ उन्हें आजमाता है जिन्हें वो अपनी खास कुर्बत देना चाहता है। आजमाइश सजा नहीं, बुलंदी का दरवाजा है। ये वो मरहला है जहां इंसान नहीं बल्कि ईमान को आजमाया जाता है। आप कभी कभी थक कर रोती हैं, दिल भर आता है और लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन दरअसल वो लम्हा इख्तिताम नहीं होता बल्कि आगाज होता है। अल्लाह जब किसी औरत को किसी मरहले से गुजारता है तो उसके अंदर की कुव्वत को जगाता है। वो चाहता है कि आप समझें, आपके आंसू कमजोरी नहीं, दुआ है। हर वो लम्हा जब आपने सब्र किया, दरअसल वही लम्हा था जब आपके लिए रहमत लिखी जा रही थी। याद रखिए, अल्लाह आपसे ज्यादा आपके दिल को जानता है। वो जानता है आपकी बर्दाश्त कहाँ तक है, आपकी खामोशी क्या कहती है, और वो लम्हा भी जानता है जब आपके सब्र की हद पूरी हो जाती है। तब वो अपने फजल से कोई ऐसा रास्ता खोल देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। दुनिया की नजर में आजमाइश तकलीफ है, लेकिन अल्लाह की नजर में यही लम्हे इंसान को उसके करीब लाते हैं। अगर अल्लाह ने आपसे कुछ लिया है तो यकीन रखें उसने कुछ बेहतर महफूज कर रखा है। वो चाहता है कि आप थोड़ा रुक कर उस पर भरोसा करें। कभी कभी अल्लाह वो सब कुछ खत्म कर देता है जिस पर आपका सहारा होता है, ताकि आप सीख सकें कि असल सहारा सिर्फ वही है। जब आपके करीब कोई नहीं रहता तब वो आपको अपनी कुर्बत अता करता है। यही वो लम्हा होता है जब आप दुआ में कहती हैं, मेरे रब बस तो ही काफी है, और अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं होता, सब्र का मतलब है यकीन। यकीन कि अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है और बेहतर वक्त ला रहा है। जब आप खामोशी से अपने दिल के जख्मों को संभालती हैं और फिर भी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं, तो फरिश्ते हैरान रह जाते हैं। अल्लाह उनसे कहता है, देखो मेरी बंदी अब भी मेरा शुक्र अदा कर रही है। यही उस औरत की असल ताकत है। अल्लाह आपको आजमाइश में देखकर कभी बेपरवाह नहीं होता। वो हर लम्हा आपके करीब होता है। बस वो चाहता है कि आपका दिल दुनिया से हटकर उसके जिक्र में लगे, क्योंकि जब दिल दुनिया से खाली होता है तब वो अल्लाह से भरता है, और जो दिल अल्लाह से भर जाए उसे दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं रहती। आपकी आजमाइश लंबी जरूर लग रही है, मगर ये लंबी इसीलिए है कि अल्लाह आपके लिए बड़ा इनाम तैयार कर रहा है। जो औरत सब्र करती है उसका हर आंसू इबादत बन जाता है। दुनिया उसके दर्द को नहीं समझती, मगर आसमान उसके सब्र से रोशन हो जाता है। अल्लाह कभी बेइंसाफी नहीं करता, वो बस हर शय को उस वक्त देता है जब वो आपके लिए बेहतर हो। जब वो देता है तो वो दुख, वो इंतजार, वो तन्हाई सब मिट जाती है, और उसके बाद जो सुकून आता है वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत होता है। लिहाजा अगर आज दिल बेचैन है तो घबराएं नहीं। ये बेचैनी दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। वो कह रहा है, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। आपको सिर्फ हाथ उठाने हैं, दिल खोलना है और कहना है, या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। कुछ बातें लफ्जों में नहीं बयान होती हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है। इंसान चाहकर भी सबको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि दिल के जख्म हमेशा जबान तक नहीं आते। कभी आपने महसूस किया है, रात की तन्हाई में जब सब सो जाते हैं तो दिल अचानक भारी हो जाता है, सांसें जैसे रुक सी जाती हैं और आप बिना कुछ कहे बस चुपचाप आंसू बहाती हैं। यही वो लम्हा होता है जब दुआ जन्म लेती है, एक ऐसी दुआ जो लफ्जों के बगैर भी अल्लाह तक पहुंच जाती है। जब इंसान कहता है, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, तब अल्लाह अपने बंदे के करीब हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं पुकारने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ये आयत सिर्फ वादा नहीं बल्कि तसल्ली है, और यही वो लम्हा है जब इंसान वाकई महसूस करता है कि वो कभी अकेला नहीं था, अल्लाह हमेशा करीब था। कभी आपने गौर किया, वो दुआएं जो आपने बरसों पहले मांगी थी वो अब पूरी हो रही हैं, और कुछ दुआएं अब तक महफूज हैं, क्योंकि अल्लाह उन्हें उस वक्त कबूल करेगा जब वो आपके हक में बेहतरीन होंगी।
अल्लाह के यहाँ ताखीर, इनकार नहीं होती। वो हर चीज को वक्त के सांचे में ढालता है ताकि जब नीमत उतरे तो दिल भी उसे संभालने के लायक हो। दुआ सिर्फ मांगने का अमल नहीं, बल्कि यकीन है कि अल्लाह सुन रहा है। जब आप मांगती हैं तो दरअसल आप अल्लाह पर भरोसा जाहिर करती हैं। आप कहती हैं, या रब, सब कुछ तेरे इख्तियार में है, मैं तेरे हुजूर आई हूँ। यही बंदगी है। अल्लाह को ये आजिज़ी पसंद है। वो दिल जो उसके सामने झुक जाए, वो आंख जो उसके जिक्र में भीग जाए, और वो रूह जो कहे, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। कभी अल्लाह दुआ को फौरन कबूल कर लेता है, कभी थोड़ा वक्त लेता है, इसलिए कि वो आपकी दुआ को बेहतर अंजाम के साथ लिख रहा होता है, और कभी उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है। लेकिन एक बात हमेशा सच है, कोई दुआ जाए नहीं जाती। हर दुआ उसके खजाने में महफूज रहती है। खामोशी में मांगी गई दुआएं बहुत ताकतवर होती हैं, क्योंकि वो दिल की गहराई से निकलती हैं। वो दुख और सच्चाई से भरी होती हैं, और यही वो दुआएं हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह अपने बंदों के दिलों में सुकून उतारता है। जब दिल बेचैन हो तो सिर्फ एक जुमला दिल में दोहराएं, अल्लाह मेरे करीब है, वो मेरी दुआ सुन रहा है। फिर देखिए, वही खामोशी जो कभी भारी लगती थी अब सुकून बन जाती है। वही आंसू जो दर्द का निशान थे अब रहमत का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह अपने करीब आने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। वो उनके दिल में इत्मीनान, उनके चेहरे पर रोशनी और उनकी जिंदगी में रहमत उतार देता है। शुक्र, मोहब्बत और नेकी का पैगाम। जब दिल थकन से गुजर जाए, जब दुआ के आंसू बेह कर दिल को हल्का कर जाएं, तब एक नया एहसास जन्म लेता है। शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि दिल की उस रोशनी का नाम है जो हर हाल में अल्लाह को पहचानती है। जब आप खुश हों तो शुक्र की खुशबू फैलाएं, और जब गम में हों तो भी ये यकीन रखें कि इसमें कोई हिकमत छिपी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये ज्यादा देना सिर्फ रिज्क या नीमत में नहीं, बल्कि सुकून, मोहब्बत और ईमान में भी होता है। शुक्र गुजार दिल वो होता है जो हर हाल में अल्लाह की रिजा देखता है। जब जिंदगी आसान हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जब मुश्किल हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दिल को मुतमईन रखें, क्योंकि शुक्र ही वो दरवाजा है जो इंसान को हर खौफ और कमी से आजाद कर देता है। यही वो कैफियत है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है और दिल में रोशनी पैदा करती है। फिर इस रोशनी से मोहब्बत जन्म लेती है। वो मोहब्बत जो खालिस होती है, अल्लाह से मोहब्बत, मखलूक से मोहब्बत, नेकी से मोहब्बत। ईमान वाला दिल मोहब्बत से खाली नहीं रह सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता यहां तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी ईमान की बुनियाद मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो दूसरों के लिए खैर चाहती है, उनके लिए आसानी पैदा करती है। नेकी मोहब्बत का अमल है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, किसी गमगीन दिल को तसल्ली देते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, या किसी के लिए खामोशी से दुआ करते हैं, तो यही नेकी है। ये छोटे छोटे आमाल अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बस जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की वो उसे देख लेगा। यानी अल्लाह के नजदीक कोई नेकी छोटी नहीं। एक नर्म लफ्ज, एक सच्ची दुआ, एक खालिस नियत सब शुमार होती है। नेकी दरअसल रूह का सुकून है। जो दिल शुक्र और मोहब्बत से भरा हो वो खुद बखुद नेकी की तरफ माइल होता है, और जब इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप दूसरों के लिए भलाई चाहेंगी, वैसे वैसे अल्लाह आपके लिए खैर लिखता जाएगा। इबादत दिल को साफ करती है और नेकी इस सफाई को जाहिर करती है। नाज़रीन, अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने या सोचने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें, और इस खैर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे और इस छोटे से काम को हम सब के लिए सबब ए अजर बना दे। या रब, अगर हमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, किसी की गीबत की, किसी का हक दबाया या किसी की अमानत में खयानत की, तो या अल्लाह हमें माफ कर दे। हमें फिर से वह मौका दे कि हम तेरा सच्चा बंदा बन सकें। या रब, हमारे गुनाह बहुत हैं, मगर तेरी रहमत उनसे भी ज्यादा है। हमारे कर्म कमजोर हैं
मगर तेरी मगफिरत बहुत बड़ी है। हमारी आंखों ने गलत देखा, जबान ने गलत कहा, दिल ने गलत चाहा, फिर भी या अल्लाह तू हमें छोड़ मत देना। हमारी कब्रों को रोशनी से भर दे, कब्र की तंगी को राहत में बदल दे। हमारे अकेलेपन में हमें अपनी रहमत का एहसास करा दे। हश्र के दिन हमें शर्मिंदगी से बचा ले और हमारे आमाल के तौल को नेकियों से भारी कर दे। या अल्लाह पुले सिरात से हमें बिजली की रफ्तार से गुजार दे। मौत के वक्त हमारी जबान पर तेरा प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूर लाना। हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब के साथ जगह अता फरमा। या रब हमारे माँ बाप पर रहमत कर, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में बदल दे। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्र में बरकत दे, उनकी आंखों में रोशनी, दिल में सुकून और जबान पर तेरा जिक्र बना दे। हमारे बच्चों को सलामती अता फरमा, उनके दिलों में तेरा और तेरे रसूल का प्यार बसा दे। उन्हें बुरे दोस्तों, बुरी आदतों और हर फितने से महफूज रख। उनकी किस्मतों को रोशन कर दे, उनकी उम्रों में बरकत दे और उनके हर कदम को सीधा रास्ता दिखा दे। या अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज की आदत डाल दे, कुरान की तिलावत में सुकून दे, हमारे घरों में ईमान की रोशनी फैला दे, हमारे दिलों को तुझसे जोड़ दे, दुनिया की मोहब्बत से हटाकर अपनी मोहब्बत में गुम कर दे। या अल्लाह हमें तकवा अता फरमा, सब्र अता फरमा, शुक्र अता फरमा और तेरी हर दी हुई नेमत पर रजामंदी के तौफीक दे। हमें अपनी रहमतों के साए में रख, हमें हिफाजत में रख और हर उस रास्ते से बचा जो तुझसे दूर कर दे। या रब अगर हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी के दिल में नेक अमल की चाह पैदा हो, अगर किसी को तेरी याद आ जाए, अगर किसी की आंख नम हो जाए, तो या अल्लाह उस सवाब में हमें भी हिस्सा दे। या अल्लाह हम तुझसे सिर्फ तेरी रहमत मांगते हैं, तेरे अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। हमें अपनी रहमतों में ढंक ले और अपनी मखलूक में हमें सिर ऊंचा रख। तेरी रजा और तेरी मोहब्बत के साथ हमें इस दुनिया से रुखसत कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोन एंड प्रेयर हैंड्स।